Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. We will conclude the holding company accounts chapter with today's class, and we are going to do one of the important questions which was not there in any of the book. I still remember the girl's name Isha. उसको मैं ईशा वो क्या कहते हैं ईशा देओल बोलता था, वो ईशा कपूर थी वैसे। उसके पेपर में ये क्वेश्चन पहली बार आया था और वो लड़की गलत करके आई थी, मुझे ये भी याद है। नाउ मैंने तब भी यही बोला था, आज भी यही बोला, बेटा व्हाट इज द एंट्री इफ द डिविडेंड इज करेक्टली रिकॉर्डेड? सर, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, if dividend belongs to previous period। और अगर हमारा क्वेश्चन गलती से बैंक टू सरप्लस कर देता था, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हम उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते थे, सरप्लस टू इन्वेस्टमेंट। करेक्ट गाइस? इफ आई रिकॉल, अगर हमारा बैंक टू सरप्लस कर देता था हमारा बुक, तो हम बैंक काट के एंट्री कर देते थे सरप्लस टू इन्वेस्टमेंट। ये अभी तक कर रहे थे। Now, what if question says dividend is correctly recorded and it belongs to pre-period? Pre-period and correctly recorded. I repeat, pre-period and correctly recorded. तो यही एंट्री बनेगी सुयश भाई? यस सर। ओके, चलते हैं आगे पुत्र। नहीं, हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे बच्चों आज। एक क्वेश्चन पेंडिंग रह जाएगा बेटा, मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इजी है बट पेपर में आ गया तो मेरे बच्चे गलती कराएंगे। ये एक क्वेश्चन रह जाएगा बट ठीक है। आज का होमवर्क लिख लो बच्चों, इलस्ट्रेशन 24। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर। और ये रहे उसके नोट्स टू अकाउंट्स आपकी स्क्रीन पर। And illustration 25, very important. Now मेरी बारी, प्लीज ध्यान देना। H Limited acquired 32,000 shares on 1st October 19 and our year ends on 31st March 20. Now we have acquired the control on 1st October. That means current year first 6 months profit will be recorded as pre-acquisition profit and remaining 6 months profits will be recorded as post-acquisition profits. Is that clear, guys? Yes sir. Yes sir. Now the amount given for acquisition of investment is 6,45,600. Whereas my balance sheet shows the value of investment at the end of the year 720. तो यहाँ पे एक बच्चा बोला सर 720 minus 645,600 represents investment in Consolidated balance sheet. Other company to be shown in consolidated balance sheet. Right, Rhythm?
Yes, sir. सुयश, कार्तिक? Yes, sir. बिल्कुल गलत जवाब बेटा। ये आंसर सही होता अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं होता, इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और मुझे नहीं पता वो करेक्टली रिकॉर्डेड है या Incorrect. थैंक यू। अब मेरी बारी। वापस इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं बचपन में ले जाता हूं अपने बच्चों को। उम्र 55 की, दिल बचपन का। बोले तो उम्र 55 की, दिल बचपन का। बोले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फॉर ए बिजनेस इज एन Asset. asset always have Debit balance. opening balance comes on, Debit. closing balance comes on, Credit. entry for purchase of investment is investment to bank. क्वेश्चन में दिया है ना, we have purchased this investment on 1st October 19. We have purchased this investment on 1st October 19. Yes, Bacha Bhati? Yes, sir. Okay. Now, the journal entry for dividend correctly recorded. The journal entry for dividend correctly recorded is bank to Investment. investment. Is that clear? Is that clear, guys? Yes, sir. सर आपने ओपनिंग बैलेंस जीरो क्यों लिखा? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज सिंपली ए बैलेंस कैरिड फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर. ओपनिंग बैलेंस इज ए बैलेंस कैरिड फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर. करेक्ट. एंड इस क्वेश्चन में वो दे नहीं रखा. अब मेरी बारी. The company had a profit of 60,000 on 1st April 19. Date of acquisition 1st October 19. We had a profit and loss on 1st April 19 as 60,000. Out of which matlab pre-acquisition. Out of which matlab pre-acquisition, because the control is acquired on 1st October. Because the control is acquired on 1st October. Out of which a dividend of 10% was paid on November 1. Dividend is paid on share capital and share capital is 4 lakh. So minus pre-dividend, 10% of 4 lakh. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. गलत जवाब. बेटा इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ होल्डिंग का शेयर आएगा ना. कुछ तो बोलो बेटा. Yes. अरे बोलो बोलो भाई. सर आप ये स्टार्टिंग से बता दो कि पॉइंट मेरा इंटरनेट थोड़ा लैग कर रहा था. कहाँ से बता दूं मेरा बेटा? बोल. तो ये जो आपने सर बस मेनली डिविडेंड वाला पॉइंट. हाँ, हमारी कंपनी कहती है कि हमने डिविडेंड दिया. 10% ऑन शेयर कैपिटल. 4 लाख का 10% 40,000 आउट ऑफ ओपनिंग प्रॉफिट, यानी इट्स अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड. यस सर, ओपनिंग प्रॉफिट है. यानी इट्स अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड टू बी रिकॉर्डेड इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिडक्शन. यस सर.
क्योंकि हमने कंट्रोल एक्वायर तो किया है 1 अक्टूबर को और ये डिविडेंड दिया जा रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1 अप्रैल 19। Yes, sir. And dividend is correctly Recorded. that is why the entry is bank to Investment. 40,000 से थोड़ी आएगी, वो तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के शेयर से आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 4 लाख अपॉन 10 40,000। होल्डिंग के पास कितने शेयर्स हैं? 32. माइनॉरिटी के पास 8, तो रेशियो इज 4:1। 1. तो यहाँ पे 40,000 की जगह कितना आएगा? बोलो बच्चों। 32,000. तो आपके पास अभी भी बच गया 1,06,400। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट टू बैंक कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी। इस क्वेश्चन का पहला और मेजर कैच, जो आप डायरेक्टली मुझे आंसर दे रहे थे, आप डायरेक्टली क्लोजिंग को इससे कंपेयर कर रहे थे, बट इसमें से आप 32 माइनस करना भूल गए थे, क्योंकि अगर डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रॉफिट की वैल्यू रिड्यूस वाली लेते हो तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो रिड्यूस वाली लेनी चाहिए इफ इट इज करेक्टली रिकॉर्डेड, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट में से इतने पैसे तो आपको डिविडेंड की फॉर्म में वापस मिल चुके हैं। बोलो बच्चों, अरे बोलो भाई। Yes, sir. मुझे SRK की आवाज चाहिए। SRK। Yes, sir. सुयश। Yes, sir. ओके, नाउ भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है, एंड दिस इज द वैल्यू टू बी शोन इन न्यू CBS called consolidated balance sheet. Is that point clear, Putter? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay, अब मेरी बारी बच्चों। इस अमाउंट, इधर देखो बेटा, इतना बड़ा नाटक किया, इसको मैं ऐसे भी बता सकता था, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। अब आपको समझ भी आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। माइनस इन्वेस्टमेंट परचेज माइनस डिविडेंड करेक्टली रिकॉर्डेड, यानी नेट इन्वेस्टमेंट। This is the balance representing investment in। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बताता तो शायद आप समझ ही नहीं पाते बच्चा पार्टी, तो I have tried my best to explain it. Is that point clear, Suyash? Yes, sir. लॉक कर दूं पुत्र? Yes, sir. All right guys, now अब मेरी बारी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया, जल्दी नहीं करेंगे पुत्र। अब इस क्वेश्चन को नॉर्मली आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में, इधर देखो बेटा, इसको काट दो, रिदिम इसको काट दो। 2 लाख का जर्नल रिजर्व है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप इसे प्री मानोगे या पोस्ट? Free acquisition. Free ना, क्योंकि 1419 लिखा हुआ है। नहीं, मैंने काट दिया 1419। अगर वो नहीं भी लिखा होता बच्चों तब भी प्री, क्योंकि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जर्नल रिजर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इज दैट क्लियर मेरा बेटा? ये तो रूल है बच्चों, शुरू से बोल रहा हूं बेटा, हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। Clear, sir.
Okay, my next question is for Suyash. Suyash, Yes, sir. करंट ईयर प्रॉफिट कितना? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। क्लोजिंग 164 है, तो ओपनिंग कितना लूं बेटा? 60 या 20? 60 या 20? 20. 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 60,000। सॉरी बेटा, सर आप फिर हम बेटा डिविडेंड चाहे रॉन्गली रिकॉर्ड हो चाहे करेक्टली रिकॉर्ड तो हो चुका है ना। यस सर। तो अगर रिकॉर्ड हो चुका है तो रिड्यूस वैल्यू लेनी है या ओरिजिनल वैल्यू लेनी है? शेम शेम। ओके सर, सो डिविडेंड के लिए हमेशा हमें रिड्यूस्ड वैल्यू लेनी होती ना है। ना 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 आप रट्टा मार सकती हो, बट मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, किसी भी प्रॉफिट का करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए, चाहे वो सरप्लस के नाम से हो, चाहे वो जनरल रिजर्व के नाम से हो, चाहे वो किसी भी नाम से हो, किसी भी नाम से हो, मुझे क्लोजिंग माइनस रिड्यूस्ड ओपनिंग करना है या क्लोजिंग माइनस ओरिजिनल ओपनिंग करना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। लॉक कर दूं? ओके। और इसके बाद प्यार का वादा आधा आधा। तो ठीक है, एड 6 months प्रॉफिट एंड सिमिलरली पोस्ट सरप्लस 72,000। कोई दिक्कत? No, sir. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट एंड मशीनरी स्टूड एट ₹1। ये पॉइंट भी अच्छा है, अच्छे से समझ लेना। At ₹3 lakh on 1st April 19 and was considered 360 on the date of Acquisition. मेरी बारी। आपने उस एसेट की वैल्यू 360 कब की? आपने उस एसेट की वैल्यू 360 कब की वैल्यू? 1st October. बट आपके पास तो 1 अक्टूबर की बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, पहले आपको 1 अक्टूबर की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी टू फाइंड आउट हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यू। यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर 360 विद 3 लाख। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि हमें कंपैरिजन तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे करना है और मेरे पास डेट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट गाइस, नाउ वन बाय वन, जल्दी मत करना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे, रिदम देखो, अगर मैं एसेट की वैल्यू बढ़ा चुका हूं तो क्लोजिंग बैलेंस 360 में से क्या 90,000 की डेप्थ लग गई? ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, ये बचपन से ऐसा है। आज 20 साल हो गए बेटा मेरे को पढ़ाते हुए, 20 सालों से ये क्वेश्चन ऐसा है। यहाँ पे एक गलती है मेरे हिसाब से जो आज तक करेक्शन नहीं हो पाई। भाई मुझे बताओ तो सही, आपने रीवैल्यूड फिगर्स को अपनी बुक्स में अभी तक इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया। इन्होंने नहीं किया? सर आपको कैसे पता? बेटा 3 लाख और 270 डिफरेंस 30 कॉल 10% डेप्रिसिएशन। समझ आ रहा है? क्योंकि जो बच्चे इनकम टैक्स पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, आप देखोगे हमारे प्लांट एंड मशीनरी का जनरल डेप्रिसिएशन रेट या 10% या 15% होता है, या 10% या 15% होता है। 99% 15%, कुछ केसेस में स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% भी होता है। सो बेस्ड ऑन दैट कैन आई से एसेट रीवैल्यू तो हुआ है, लेकिन हमने अभी तक रीवैल्यूड फिगर शो, बोलो अरे कुछ तो बोलो यार। नहीं करी। तो बोलते क्यों नहीं हो यार? इट मीन्स revalued figures are not yet shown.
लॉक कर दो बेटा इस बात को। Yes, sir. ओके, नाउ डेप्रिसिएशन रेट कितना आया बच्चों? 30,000 इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 3 लाख इंटू 100, 10%। बोलो बच्चों, यार कुछ तो बोलो यार, मैं जा रहा हूँ। सॉरी, Yes, sir. 30,000 कहाँ से लाए हैं सर? लेकिन वैल्यू तो 360 हो गई थी ना। वो 360 होने के बाद क्या आपने अभी तक रिकॉर्ड किया है वो वैल्यू? नो सर। इसका मतलब हमने तो 3 लाख को ही रिड्यूस करके दिखा रखा है कि नहीं? यस सर। बोलो, less depreciation on 3 lakh at the rate 10% only for 6 months, because I want my book value on the date of acquisition so that I can calculate my profit on revaluation. So profit on revaluation will comes out to 360 minus 285 called 75. Put out. बोलो। तो 10% के बाद वाला बता दो। सॉरी मेरा बेटा, जो बुक वैल्यू ऑन 1419 वाला है। हाँ, हाँ वो बेटा, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 19 वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देता है। मैंने कहा बच्चों मेरी 1 अप्रैल 19 को बुक वैल्यू कितनी थी 3 लाख रुपीज, और मेरा डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%। मैंने रीवैल्यूएशन कौन सी डेट को किया है? 1 अक्टूबर। तो मुझे बुक वैल्यू भी कौन सी डेट को चाहिए? 1 अक्टूबर। So first I have to go till 1st October to find out my book value on the date of acquisition, which is 1st October, yani 6 months later from 1st April. ओके सर। Is that point clear, Karthik? Yes, sir, clear. Now computation of additional depreciation. Depreciation already हमने कितना चार्ज कर रखा है? 15,000. Okay. डेप्रीसिएशन हमने ऑलरेडी कितना चार्ज कर रखा है? 50,000. डेप्रीसिएशन टेक्निकली टू बी चार्ज्ड, आपके एसेट की वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी थी? आपके एसेट की वैल्यू 1 अक्टूबर को कितनी थी? So for the first 6 months, you are under an obligation to charge the depreciation on 3 lakh. And for the remaining 6 months, you are required to charge the depreciation on 3,60,000. Therefore, additional depreciation कितना? बोलो। माइनस कर देंगे 3,000. सुयश के अलावा किसी को डाउट? सुयश ने तो बोल दिया इनडायरेक्टली, इसका मतलब उसको डाउट नहीं है। कार्तिक? No doubt. Rhythm? नो सर। And this depreciation called additional depreciation belongs to period which is on or after The acquisition तो सारा post होगा.
ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 19 है, which is on or after 1 October 19 है. So that's why the entire depreciation belongs to post acquisition period. That's why the entire depreciation belongs to post acquisition period. Is that point clear, guys? और पोस्ट एक्विजिशन क्यों है? बेटा मुझे बताओ, आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 3000 आ रहा है, उसका इफेक्ट किसकी वजह से आया है? रीवैल्यूएशन की वजह से. यस सर. रीवैल्यूएशन कब हुआ है? 1 अक्टूबर को. यस सर. तो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स का होगा. ओके सर. That's why this additional depreciation belongs to the period on or after 1 October 19. And hence it represents post-acquisition period. Got it, sir. मुझे जल्दी नहीं है पुत्र, मैं बड़ा पेशेंस वाला बंदा हो गया हूँ. काफी मैंने चेंज किया है अपने आप को आने वाले टाइम, पिछले टाइम में, आने वाले टाइम में भी करूंगा. बिकॉज गुस्सा करने से कुछ होता तो है. समझ नहीं आया, क्या फायदा ऐसे बोलने का. ऑलराइट, ये मैंने इसलिए किया मेरा बेटा, ताकि मैं अब आपको बता सकूं कि मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन को कौन से प्रॉफिट में से माइनस करना है, प्री या पोस्ट. पोस्ट. इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस सर, क्लियर है. नाउ इस क्वेश्चन में इसके अलावा तो और कोई पॉइंट है ही नहीं, ना कॉमन डेट, ना शॉमन डेट, ना होता भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता. अब मेरा क्वेश्चन, सच्ची बात बताओ, खलास. अब आप मेरी हेल्प कर दो. किस चीज में कर दें सर जी? और मैंने कहा यार तुमने होल्डिंग और माइनॉरिटी की रेशियो ही नहीं निकलवाई. सर निकलवा तो दी थी 4:4:2. निकाली नहीं निकाली बेटा? ये 4:1. यहां से चल रहा है ना बच्चों क्वेश्चन. मैंने बस नंबर नहीं डाला था, मैं थोड़ा सा गलती कर जाता हूँ. इलस्ट्रेशन 25. सो फार सो गुड. तो डिवाइड करो बेटा इसको फटाफट से. और उसके बाद आप लोग एक फोटो जरूर ले लेना बच्चों, ताकि हम कैलकुलेशन फटाफट कर सकें. 4:1 है ना बच्चों? हाँ जी सर, 4:1. इस डिविडेंड का करेक्टली रिकॉर्डेड का इम्पैक्ट मैं आपको इनडायरेक्टली सिखा चुका हूं. राइट मेरा बच्चा? ऑलराइट, एक बार जरा फोटो ले लो बच्चों यहां तक. ले लिया रिदम? यस सर. अब बस मेरी कैलकुलेशन में हेल्प कर देना. Cost of control. How much is the gross cost of investment? And guys, please, dividend चाहे correctly recorded हो चाहे wrongly recorded हो. करेक्टली है तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तब भी माइनस करूंगा. रॉन्गली है तो सरप्लस टू इन्वेस्टमेंट. दोनों में इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट ही हो रहा है, माइनस तो करूंगा ही करूंगा. And that is the reason you ended up comparing it with 7,20,000. तो अगर कहना से एक और चीज, अगर माइनस तो इन्वेस्टमेंट को करना ही करना है, जो डिविडेंड वाला पार्ट है प्री. अगर करेक्टली रिकॉर्डेड है तो रिड्यूस वैल्यू को कंपेयर करना है, और अगर रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो ओरिजिनल को ही कंपेयर करना है. यस कार्तिक?
Yes, sir. लेट्स पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है हमारी? 3,20,000. लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व कितना आया था बेटा? सरप्लस कितना आया था पुत्र? रिवेल प्रॉफिट कितना आया था बेटा? ठीक लिख रहा हूं ना पुत्र? Oh, yes, sir. इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। माइनस करो बेटा, बताओ कितना आया? देखो जीरो आ रहा होगा इस बार, है ना? राइट बेटा? Yes, sir. Now minority interest. Now minority interest. माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें बेटा, पेड अप कैपिटल कितना? डिविडेंड रिसीव्ड कितना? राइट, डिविडेंड कभी भी डिविडेंड कभी भी रिकॉर्ड, माइनॉरिटी का डिविडेंड कभी भी रिकॉर्ड नहीं बोलो बेटा। नहीं करते. क्योंकि डिविडेंड सब्सिडरी जब दे चुकी है तो माइनॉरिटी तो उसे रिसीव, तो उसने रिसीव कर लिया तो उसके उसको पेट में यस सर, रात गई। बात कही. क्योंकि अब देना बाकी थोड़ी है भाई, दे दिया तेरे को, रात गई बात गई, अब कौन से पैसे मांग रहा है, पागल है कि? ऐसे ही बोलोगे ना यार, आर यू गॉन मैड, वी हैव ऑलरेडी पेड डिविडेंड, वी डोंट ओ यू एनीमोर एज फार एज द डिविडेंड इज कंसर्न। नाउ प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट के नाम पे बेटा जनरल रिजर्व कितना था, सरप्लस कितना था, और प्रॉफिट ऑन रीवेल कितना था? पोस्ट प्रॉफिट्स, पोस्ट बता दो बेटा, वो मैंने रटे हुए। पोस्ट बताओ जनरल रिजर्व कितना है बेटा? बोलो बच्चों। तो पोस्ट जनरल रिजर्व था ही नहीं. नहीं था तो फिर बोल दो ना नहीं था। और सरप्लस? अब टोटल बताओ कितना आया ये? So minority interest to be shown in the new balance sheet has to be 1 lakh, absolutely 1,67,200, 1,67,200। कोई डाउट बेटा? नो सर. नाउ रिजर्व एंड सरप्लस आप कर सकते हो कि मैं करके दिखाऊं बेटा? सो कर लेंगे, हाँ, सो कर लेंगे. उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, सिंपल एडिशन। इस बार तो स्टॉक रिजर्व भी नहीं है, इस बार तो रॉन्गली रिकॉर्डेड डिविडेंड भी नहीं है, खाली होल्डिंग के प्रॉफिट्स ऐड करो, शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ पोस्ट वाला ऐड करो, छुट्टी। तो गाइस वी ट्राइड डेवलपिंग ए कॉन्सेप्ट। मैं अभी एंड में रिकॉल करता हूँ, जो भी बच्चे ये क्वेश्चन खुद करेंगे घर पे, मैंने आपके साथ एक बार आंसर शेयर कर दिया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर वर्किंग नोट्स।
Yes, guys. Now, आज के लिए हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे. Rest will continue in the next class. Till then, bye bye and stay safe.